Your mind is your power. It's not a book for me. It's a emotion. It's a love. हेलो सर। तो ये पहली बार है मेरा कि एक ऑथर के साथ मैं एक पॉडकास्ट ले रहा हूँ। इट्स बीन लाइक आई रिस्पेक्ट यू। तो सर बताइए आप अपनी जर्नी के बारे में, लाइक हाउ डिड इट कन्वर्टेड इनटू बीइंग इनटू एन इंडियन एयरफोर्स और एकदम से इनटू कॉर्पोरेट वर्ल्ड। See, when you are a child, you have so many dreams. कि बड़े होकर अच्छी नौकरी लगेगी, you know. Since our time, people were not thinking about the business. They were thinking about the job and government की job, private job. और ज़्यादातर उस वक्त गवर्नमेंट जॉब पीपल लाइक टू ज्वाइन. सो जो सपने लोगों के बच्चों के होते थे कि अच्छी जॉब, अच्छा मकान एंड अच्छी गाड़ी इन द बिग सिटी, यू आर गोइंग टू स्टे देयर, वही जैसे सपने होते हैं हमारे भी वैसे सपने थे कि हम लोग डिफेंस में जाएंगे और डिफेंस की जॉब करेंगे. क्योंकि डिफेंस की जॉब में जो अट्रैक्शन था, जो क्रेज़ था, इट वाज नॉट इजी टू ज्वाइन, इट वाज ए टफ टाइम, बट लेकिन हम लोगों ने उसको क्रैक किया एग्ज़ाम को. एंड आई थिंक इट्स 1988 व्हेन आई जॉइंड इंडियन एयरफोर्स. वर्कड फॉर समथिंग लाइक मोर देन 16 years there. And then there was some family issue, so I thought I should come to home now, because multiple places you have to go with your family and children. So I thought of coming out on the compassionate ground from the Indian Air Force. I came, and last posting was in Delhi, so I thought I will come to Delhi, and after that I will put in a paper for that. And that was the way when I left Indian Air Force, joined the private corporate world. Then it was very warm welcome by the defense person into the corporate world. सर कोई मेमोरी होगी वहाँ की जो आप शेयर कर सको? मेमोरी बहुत सारी है. 16-17 साल छोटा वक्त नहीं होता है. वी वर चाइल्ड, लाइक आई वाज जस्ट 17, लेस देन 17 years old when I joined Indian Air Force. I went to Bhuj, Kutch, Nalia, Kutch area. My first posting was there in Nalia, Gujarat. Then we were into squadron there, and sometimes you feel that there is a scramble. There is some aircraft coming from the Pakistan and entering into India. So they sound the scramble when the people get alert, and that was the way. And there are so many passive air defense warnings where we have to stay into the bunker underground for 72 hours, and you get the khana and everything on the post. You can't go home, and that's very good memories we have come up into the Indian Air Force. Sir, from my perspective, I think you are after going into like real estate world. As we already know, real estate includes like whole day hustle and sometime getting into the field. But oppositely, what an author is, he's like into patient perseverance. So how this transition came through in your life? Actually, when I was in 12th class, there was a habit of me that I was writing books, or small books, you can say, small stories, or sometimes poems. We used to write so many things, and that was not published anyway. It was kept in my copies and the registers during my childhood. So I thought I should start something writing in a better way. But by the time I joined service, then I came into the private sector, I could not get time. But one day I thought that what is actually purpose of my life, what I'm going to get from this life. And once I have everything, so where I'm running, why I'm running, what I'm chasing. So that thought took me to the other side of the life. There are two sides of the life, like coin, where you have the happiness, positivity, and the other is the sorrow and the negativity, right? I thought of going somewhere where I can live at least few days alone and think about it. तो मैंने प्लान किया कि चलो एक सोलो ट्रिप मारते हैं. I took a leave from the office. I was working into real estate company. तो वहाँ से छुट्टी ली तो बॉस जो थे 4-5 दिन. And when you talk about the leave in the private sector, people think that I don't know where he is going, and he will keep his phone switched off. And that's not the way actually private sector works. You have to be there. If you are on the senior position, you have to be there for 24/7. तो मैंने सोचा नहीं, अभी बहुत हो गया, मुझे इस काम को ज़रा ऐसे लेना है कि अपने बारे में सोच के कि मुझे आगे क्या करना है वो प्लान करना है. बिकॉज सी, इफ़ यू आर 50+,
देन यू हैव टू थिंक अबाउट योर लाइफ ऑल्सो, योर हैप्पीनेस ऑल्सो। तो मैंने छुट्टी ली, अपनी गाड़ी एलोन सोलो ट्रिप पे निकल गया। आई वेंट टू चंडीगढ़, हमीरपुर, देन आई वेंट टू धर्मशाला एंड देयर वर सम मेडिटेशन कोर्सेज वर रनिंग देयर। तो वहाँ एक जगह है मैक्लोडगंज के पास में, धर्मकोट, और वहाँ पर एक सेंटर है तुषिता मेडिटेशन सेंटर। वहाँ आई ज्वाइन 3 days कोर्स एंड इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। जो 37 टीचिंग्स होती हैं बुद्धा की, उसने उन लोगों ने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया, एक्सप्लेन किया। एक एक टीचिंग को मैंने पढ़ा, समझा और नोट डाउन किया। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये टीचिंग्स को लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। नॉट ओनली माई लाइफ, कितने लोग ऐसे हैं जो डिस्ट्रैक्शन में हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो नेगेटिविटी में हैं। अगर उनके लिए कुछ लिखा जाए, समझाया जाए एक सिंपल लैंग्वेज में, तो हम कर सकते हैं इसको। तो इट वॉज वेरी टफ फॉर मी बिकॉज मेडिटेशन का तो नाम सब जानते हैं, बट उसके पीछे क्या क्या प्रैक्टिसेस होती हैं एंड व्हाट इज़ द प्रैक्टिसेस ऑफ बोधिसत्वा हु फॉलोज द बुद्धिज्म। 3 दिन में इतना पीसफुल माइंड, आपको डिसीजन लेने लायक हो गए आप। आई मीन यू आर रनिंग इन टू समवेयर दैट यू आर नॉट लुकिंग, कुछ नज़र नहीं आ रहा आपको, तो आपको लगा कि अब समथिंग इज़ क्लियर, माइंड इज़ क्लियर ना। इसके बाद वहाँ से जब वापस आए तो वहीं से एक आइडिया हो गया था कि आई शुड पेन डाउन ए बुक ऑन दीज थिंग्स। बट वो हर चीज़ को लिखना बोलना तो आसान होता है, 180 पेजेस की बुक एंड 37 प्रैक्टिसेस को, एक एक प्रैक्टिस जो है उसको अलग से एक्सप्लेन करना है कि आपकी लाइफ में क्या क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ द बुद्धिज्म। आई केम बैक, आई रेड सम बुक्स, दलाई लामा साहब की कोई बुक पढ़ी मैंने, उससे थोड़ा, फिर बाकी बुक्स घर में हैं, मेरा एक छोटी सी लाइब्रेरी है। वी सी ऑल अराउंड पीपल हैविंग लॉट्स ऑफ नेगेटिव थॉट्स अबाउट themselves or others also. So it will take you to the positivity and make you some kind of sense which applies on your life also. So this book is regarding meditation, practicing wisdom and concentration on your focus on your goals. ने बताया कि आप सोलो ट्रिप पे गए, आई थिंक वहीं ऐसे क्रिएटिव आइडियाज जनरेट होते हैं। तो सर लेट्स टॉक अबाउट योर बुक मेडिटेशन पे जो आपने लिखी है। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव आई थिंक मेडिटेशन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको अपने डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बट आप इसको मेडिटेशन को लेकर टीनेजर्स से रिलेट कर पाओ तो। जितने भी आज की डेट में अगर आप सोचेंगे जनरेशन, न्यू जनरेशन है, जो आर सिटिंग इन ए रूम एंड जस्ट बिजी विद द मोबाइल फोन, दे हैव टू कम आउट ऑफ दैट लाइफ। दे आर द एक्चुअली फ्यूचर ऑफ द नेशन। अगर उनको कुछ करना है तो उनको अपना ध्यान किसी अपने अच्छे गोल पे लगाना पड़ेगा। सिर्फ इंस्टा पे रील देखना या फेसबुक पे अपने पोस्ट करना इज़ नॉट द पर्पज ऑफ लाइफ, वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है। दे शुड गो फॉर द मेडिटेशन इन द मॉर्निंग टाइम एंड व्हेन दे गेट अप फ्रॉम द, first of all, they have to make a discipline that they have to get up in the morning around 5 or 6 o'clock. Then they can sit for the meditation for 15-20 minutes. Best time for the meditation is between somewhere 5 a.m. to 7 a.m. They should go for the meditation. They can spend some time with themselves rather than spending time on the mobile. They should spend some time, like 30 minutes to 60 minutes. They should perfectly sit on and think about their own life, their own goals. Meditation has a procedure. सर एक पर्सनल क्वेश्चन था आपसे कि लाइक आपने अपने बुक में सब एम्फसाइज करा है मेडिटेशन के बारे में फुल कंसिस्टेंटली, क्या आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसे पूरा कंसिस्टेंटली मेडिटेट करते हो? करता हूँ, बट आई एम नॉट 100% परफेक्ट. देयर आर परफेक्शंस. Once you want to achieve all the perfections, you have to be very disciplined. If you are not able to sleep in the night, in time, you will not be able to get up in the morning. But I have a practice that when I go for sleep, I have meditation at least for the 15 minutes before sleeping. So I get a good sleep during night. So that is the purpose. So you agree, like a healthy mind is a wealthy mind. When you talk about the definition of healthy and wealthy, healthy means what? Means your mind is clear, there is no adverse thoughts, कोई बुरे ख्याल नहीं आते हैं, कुछ अच्छा दिमाग में चलता रहता है, उसको हेल्दी बोलेंगे. हेल्दी मतलब यह है, अगर आप ठीक से चल रहे हैं तो आपकी टांगें हेल्दी हैं, आप ठीक से नहीं चल रहे हैं तो हेल्दी नहीं है. इट्स लाइक माइंड. दिमाग के अंदर अच्छी चीज़ें आएंगी तो हेल्दी होगा. और अच्छी चीज़ें कैसे आएंगी?
अगर अच्छी चीज़ें को लाना है तो आपको फोकस करना पड़े ऑन ए गोल. When you go for the meditation, why I'm talking about the meditation every time, because that is the actually way we can come out of your all kind of sorrow, or you can say you can help people by coming out of their own pain. मेरे पास ना 2 क्वेश्चन है आपके लिए. फर्स्ट वन, तो आपने अपनी बुक में लाइक यू हैड टॉक्ड अबाउट द बुद्धा. तो अगर आपके सामने बुद्धा आ जाते हैं तो आप क्या चीज उनसे पूछोगे, कहोगे? व्हाट विल बी द वन वर्ड, वन थिंग यू कैन टेल देम? Dream comes true. It's like that. When you see Buddha is coming in front of you, you are the one among so many people that who have seen the Buddha. बट वो हमारी ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं है. हम ये मान के चलते हैं कभी कभी कि कुछ चीज़ ऐसी होती है वो ड्रीम ही रहती है. लेकिन अगर आप मेडिटेशन ढंग से कर रहे हैं, यू कैन सी द बुद्धा. दैट इज़ द पावर ऑफ मेडिटेशन. यू हैव टू फोकस ऑन द एक्सटर्नल. यू कैन फोकस. देयर आर 2 objects. One is external and one is internal. If you focus on the internal object, then you will feel that you are coming close to your mind. सर, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? कि आप अब और बुक्स लिखोगे या फिर ये एक ही बुक का एंड? ऑब्जेक्ट तो लगभग सेम ही होगा, इससे प्लान. अब आपको कब हो पाएगा ये नहीं मैं कह सकता, लेकिन मैं इतनी एडवाइस देना चाहता हूँ बच्चों को या जो लोग भी इसको सुन रहे हैं कि थोड़ा अपनी लाइफ में बाहर निकले, सिमट कर ना रह जाए. मैंने 2-3 लाइन लिखी है, मैं आपको सुनाता हूँ. सिमट कर रह गया है किरदार मेरा, अब हम सिर्फ 6 इंच के सामान में मिलते हैं. ठाकों से गूंजता था कभी संसार मेरा, जो अब सिर्फ इमोजियों की शक्ल में मिलते हैं. खेलते थे मैदान में दोस्तों के साथ पसीना बहाकर, अब वो लोग ऑनलाइन घर के किसी कोने में मिलते हैं. Amazing, amazing, sir. I think everyone should implement these type of factors on their life. And definitely बहुत अच्छा पॉडकास्ट मेरे को लगा आपके साथ ये कर. And we will be waiting for your next book कि आप लिखिए, several aspects पे लिखिए, sir. And thank you, sir, for joining. Thank you very much. Thanks for coming.